اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، ریاست اتر پردیش کے بہرائچ سے ہمارے رپورٹر حافظ اقبال نے بتایا کہ بہرائچ میں تشدد کے بعد، فساد کے بعد مسلمانوں کے ہی خلاف یک طرفہ کارروائیاں کی جا رہی ہے، جبکہ پورا ملک جانتا ہے کہ بھگوا آتنکوادیوں نے شرپسندی کی، مسلمانوں کے گھروں پر چڑھ کر وہاں سے ہرے جھنڈوں کو نکال کر بھگوا جھنڈے لگائے، توڑ پھوڑ کی، نہ جانے کیسی کیسی شرارتیں کی، اس کے بعد ماحول خراب ہوا۔ تو اب کارروائی تو بھگوا آتنکوادیوں پر بھی ہونی چاہیے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہی یک طرفہ کارروائیاں کی جا رہی ہے، جس کو لے کر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کے آدیش پر، ان کی ہدایت پر ریاستی جمعیت علماء یعنی اتر پردیش جمعیت علماء کے رضاکار متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہرائچ میں 13 اکتوبر شام 5 بجے کے قریب مورتی وسرجن کا ایک جلوس تحصیل مہسی کے گاؤں مہاراج گنج کے بازار سے ہو کر نکل رہا تھا۔ جلوس میں شامل بھگوا آتنکیوں نے مسلمانوں کے گھروں کے سامنے پہنچ کر جلوس روک دیا، گندے گندے بھڑکاؤ نعرے لگائے اور مسلمانوں کے گھروں پر لگے ہوئے جھنڈوں کو اتار کر بھگوا جھنڈا لہرانے لگے۔ تو اب یہ واقعہ کھلا بتا رہا ہے کہ آتنکوادی کون، آتنک کس نے مچایا، تو کارروائیاں کس پر ہونی چاہیے، مگر مسلمانوں کے خلاف ایک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہے۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے جمعیت علماء اتر پردیش کے رضاکاروں کو وہاں مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے صدر مولانا سید اشہد رشیدی کی ہدایت پر بہرائچ ضلع جمعیت کے کارکنان کی رپورٹ کے مطابق جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر اگلے دن مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بڑے پیمانے پر آگ لگایا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی۔ رپورٹ کے مطابق گاؤں میں مسلم نوجوانوں کی ہی ایک طرفہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہے، جبکہ اصل مجرم جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر مار پیٹ کی، گھر کی چھت پر بھگوا جھنڈا لہرایا، ابھی بھی آتنک مچا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری چونکانے والی خبر، ملک میں کیا چل رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے کمزور ہاتھوں میں ملک ہے۔ خبر پھر آ رہی ہے کہ بھارت میں اور 4 پلینز کو، طیاروں کو، فلائٹس کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے، جس سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شکاگو جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز فلائٹ کو کینیڈا میں ہی لینڈ کیا گیا اور تلاشی لی گئی۔ ملک کے 4 فلائٹس کو، پلین کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے۔ ان میں ایئر انڈیا،
स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा के तैयारे शामिल है। इसके अलावा सिक्योरिटी इदारों ने तैयारों को धमकियां देने वालों का पता लगाने के लिए भी कोशिशें तेज कर दी हैं। लेकिन क्या चल रहा है, कभी ट्रेन उड़ाने की धमकी, कभी एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी, कभी स्टेशन उड़ाने की धमकी, कभी प्लेन उड़ाने की धमकी। यानी मुल्क बड़े कमजोर हाथों में जा चुका है और गुंडों का आतंक बढ़ गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कनाडा ने एक बार फिर, कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने डिमांड किया है, मांग की है, मुतालबा किया है कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि आरएसएस पर पाबंदी लगाने के लिए कनाडा जैसा मुल्क डिमांड कर रहा है। लेकिन हमारे प्यारे मुल्क में आरएसएस के सर चालक को बाकायदा पूरी फुल सिक्योरिटी दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा देश में योगदान देने वाला है, जबकि दुनिया, भारत की पूरी तारीख गवाह है कि आरएसएस का चेहरा पहले भी कैसा था, आज भी कैसा है और आरएसएस मुल्क में कैसा माहौल बना रही है। अभी आपने देखा होगा कि आरएसएस की ट्रेनिंग कैंप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और धर्म युद्ध, यानी गोया कि यूं समझिए कि मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार और दंगे फसाद का माहौल बन रहा है। कनाडा में आरएसएस पर पाबंदी लगाने का डिमांड किया जा रहा है, तो क्या भारत में नहीं होना चाहिए? आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात, असम्बली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को असम्बली इलेक्शन होगा और 23 को गिनती होगी। झारखंड में 2 मराहिल में होगा, 13 और 20 2 मराहिल में झारखंड में होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 15 सूबों में ज़मीनी इंतखाबात, पोट निवडणूक जिसे कहते हैं, उसका भी ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने मंगल को महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा यानी 119 सीटों पर लड़ेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज वजीर आला CM पद की शपथ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। बताया जा रहा है कि SKICC फौजी छावनी में तब्दील हो गया। जगह जगह नाकाबंदी पॉइंट्स कायम कर दिए गए और मशकूक अफराद की जामा तलाशी मुहिम शुरू हो गई है। आज हलफ बर्दारी की तकरीब में इंडिया अलायंस के लीडरान को मदऊ किया गया है। इंडिया अलायंस के लीडरान की श्रीनगर आमद के पेश नज़र झील डल के किनारे पर वाक़ SKICC के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि सलमान सागर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नाजुक दौर में उमर अब्दुल्ला से बेहतर कश्मीर के लिए कोई कायद नहीं। वहीं पर अब लोग ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर को रियासत का दर्जा जरूर मिलेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। मराठा रिजर्वेशन के मुहर्रिक मनोज जारंगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को शिकस्त दिए बगैर, हराए बगैर खामोश नहीं बैठूंगा। मराठा रिजर्वेशन के मुहर्रिक मनोज जारंगे ने ज़ाब्ते अखलाक का ऐलान होते ही बराह रास्त वार्निंग दी है और कहा है कि देवेंद्र फडणवीस मराठों को शिकस्त देना चाहते थे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम मराठों को शुमार नहीं करते। आज तक मराठों को रिजर्वेशन देना है या नहीं, यह हुक्मरान की हैसियत से उनका फैसला था। ताहम अब यह मराठा बिरादरी के हाथ में है कि उन्हें वोट देना है या नहीं। लेकिन जारंगे ने वार्निंग देते हुए ये तो कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को जब तक शिकस्त न दे दूं, हरा ना दूं, खामोश नहीं बैठूंगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मरहूम बाबा सिद्दीकी के मर्डर और कत्ल में आप जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को घसीटा जा रहा है। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये सब फालतू आते हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही है।
पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम की है। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछगछ में ये बात सामने आई है। मज़ाहिया अदाकार कॉमेडी अदाकार मुनव्वर फारूकी को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकियां मिली है, जिससे मुंबई पुलिस ने उन्हें जारी तहकीकात के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने को कहा है। स्टैंड अप मज़ाहिया मुनव्वर फारूकी को मुबैना तौर पर मुजरिमाना गिरोह की तरफ से धमकियां मिली है, जिसकी क़यादत जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। जबकि खबर यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के साबरमती जेल से बहुत जल्द मुंबई लाने की तैयारियां हैं, लेकिन तहवील मिलना उसको हवाले लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए पुलिस को हाई कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। लोग बिल्कुल खुलकर यह कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर को डायवर्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद चंद्रजीत पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं 90 साल का हो जाऊं तो भी रुकूंगा नहीं, महाराष्ट्र की तरक्की का अज़म मेरा बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस दौरान कद-आवर रहनुमा शरद पवार का एक बयान सामने आया है, जिससे बीजेपी और अजीत पवार शिंदे फडणवीस के खेमे में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि भले ही मेरी उम्र 84 साल है, लेकिन 90 साल की भी हो जाए तो भी मेरा काम रुकेगा नहीं। महाराष्ट्र के विकास का जो अज़्म है, महाराष्ट्र की तरक्की का जो मेरा इरादा है, वो बरकरार रहेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, SCO का सरबराही इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा भारत एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सुर्ख कालीन पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ इशाइया यानी रात के खाने में शरीक हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें SCO के रुकन ममालिक के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। इसीलिए भारत के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर सुर्ख कालीन से उनका इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, राहुल गांधी ने बड़ा सवाल इस वक्त मोदी और बीजेपी पर, बल्कि सत्ताधारी पार्टी पर खड़ा किया है। खासतौर से मोदी से ये सवाल किया है। राहुल गांधी का कहना है कि चीनी फौजियों ने लद्दाख में दिल्ली के साइज की जमीन पर कब्जा कर लिया, यानी जितना दिल्ली है उतनी जमीन पर चीनी फौजियों ने लद्दाख में कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि वजीर आजम मोदी इस खबर से लापरवाह कैसे हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ की जो रखेल मीडिया है वो नहीं बताती है असल सच्चाइयों को, और एक तरफ हमारे वजीर दिफा कहते हैं कि 1 इंच जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीनी फौजियों ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और ऐसा है तो फिर वो कहते हैं कि वजीर आजम मोदी इतनी बड़ी खबर से गाफिल कैसे है, बेखबर कैसे है। बेखबर नहीं हो सकते हैं, बल्कि असल ये है कि जनता से छुपाया जा रहा है और मुल्क की आवाम को मीडिया के जरिए से गुमराह किया जा रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट